الدین الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يفترها. رواه مسلم. اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو شریعت اور شریعت کے اندر جو تعلیمات دی ہیں وہ اس بات کے لیے کافی اور ضامن ہیں کہ انسانی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے مابین ایک دوسرے کے درمیان کسی طرح کی کوئی نفرت، کوئی عداوت نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ وعدہ کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. صحیحین کی حدیث ہے اور بہت ہی معروف قسم کی مشہور حدیث ہے. ہم سب اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، اس لیے کہ بار بار سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پکا مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو نہ پسند کرے جو خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تئیں کس طرح کا رجحان اور میلان ہونا چاہیے. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ جیسا اپنے لیے چاہتا ہے، جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. ظاہر ہے کہ انسان اپنے لیے ساری خوبیاں اور اچھائیاں پسند کرتا ہے. کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کرے، کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے کاروبار کے اندر کوئی اس کے ساتھ دھوکہ کا کام کرے، یا کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کی اپنی کوئی چیز ہو کوئی شخص اسے غصب کر لے. اس طرح کی باتیں کوئی اپنے لیے نہیں پسند کرتا ہے. تو دوسروں کے لیے بھی ایک مومن جو ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو وہ ایسا ہی دوسروں کے لیے بھی چاہے. اسلام نے تو اتنی بہترین تعلیمات ہم سب کو دی ہیں، اور اس طرح کی تعلیمات کہ انسان ایک مسلمان اگر ان سے زیبدن ہو جائے، ان کو اپنے بلند اخلاق کا حصہ بنا لے، ان خوبیوں کو اپنے اندر جگہ دے لے، ان خوبیوں سے اپنے آپ کو اپنی زندگی کو آراستہ کر لے، اور اسی طرح جن برائیوں سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، انسان جھوٹ نہ بولے، کسی سے حسد نہ کرے، جلے نہیں، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرے، کاروبار کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دے. اس طرح کی جو تعلیمات دی گئی ہیں یہ سب اس بات کے ضامن ہیں، اور ان سب کا اعتقاد ہے کہ اگر مسلمان ان چیزوں کو اپنا لیں تو ان کے درمیان جو سوسائٹی ہوگی، جس سوسائٹی کا وہ حصہ بنیں گے، وہ ایک بہترین قسم کی اور بہت ہی اعلیٰ معیار کی سوسائٹی بنے گی. وہ بہت ہی خوشگوار قسم کی سوسائٹی اور ماحول ہوگا جہاں انسان اور مسلمان رہیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی اور برائیاں اس کے اندر سے ناپید ہو جائیں گی. لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے انسان بنایا ہے، اس کے اندر کمیاں ہیں. اس سے تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اعلیٰ معیار پہ اپنے آپ کو فائد رکھے، بلند کردار سے اپنے آپ کو آراستہ رکھے. لیکن انسان کے اندر کمیاں ہیں، اس کے اندر آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہیں جو اس کے اندر دل کے اندر آتی ہیں جن کی وجہ سے معاملات بگڑتے بھی ہیں آپس میں. اللہ رب العالمین نے جو شریعت ہم کو دی ہے اس کے اندر پورا انتظام اس بات کا ہے کہ اگر دوریاں پیدا ہوں، کسی وجہ سے دل کے اندر کڑواہٹ آ جائے، کوئی معاملہ بن جائے کوئی معاملہ اگر آپس میں بگڑ جاتا ہے تو ان سب کو بنانے کی صورتیں موجود ہیں. یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر
सोमवार को और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। ला युश्रिकु बिल्लाहि शैअन, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क नहीं करता। यानी शिर्क एक ऐसी चीज़ है जो बेहद कबीह चीज़ है और इंसान की मग़फ़िरत के लिए मग़फ़िरत के अंदर बहुत बड़ा रुकावट बनती है। वो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मग़फ़िरत नहीं मिलती है जो बंदा शिर्क में मुलव्वस होता है। इस हदीस में आपने फरमाया इल्ला रजुलन कानत बैनहु बैन अखीही शहना, हाँ वो बंदा, वो शख्स, वो इंसान जिसके दरमियान और उसके किसी मुसलमान भाई के दरमियान कोई दूरी, कोई नफरत हो, कोई अदावत हो, कोई बुराई हो, ऐसा अगर है, कोई मामला है, बिगड़ा हुआ मामला है, तो उसकी मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं फरमाता। जन्नत में उसका जाना वो दरवाज़ा जो उसके लिए बंद का बंद होता है। इसी तरह से मुस्लिम के हदीस के अंदर आता है कि तुरदुल अमालु अल्लाहि फी कुल्लि इस्नैन व खमीस, यानी इसके अंदर जन्नत का दरवाज़ा खुलने की बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि हर सोमवार को और जुमेरात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने बंदों के अमाल पेश होते हैं। तो हर शख्स ये चाहता है, इंसान की कोशिश होती है कि वो जो भी नेकियां करे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो कबूल की जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे शर्फ़ कबूलियत बख्शे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसका अजर सवाब से नवाजे। ये हर शख्स की कोशिश होती है और होनी भी चाहिए, इसलिए कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम पाने के लिए इंसान की अपनी नेकियां उसके लिए बेहद ज़रूरी बन जाती हैं। लेकिन बुराइयों का मामला, गुनाहों का मामला ये है कि इंसान से जो ही गुनाह सरज़द हुआ, किसी बुराई का, किसी गुनाह का इर्तिकाब हुआ, किसी मासियत में वो मुलव्वस हुआ, तो फौरन फरिश्ते जो लिखने वाले फरिश्ते हैं तो उस गुनाह को लिख रहे। गुनाह तो होते ही वो गुनाह हो गया। लेकिन अगर हम नेकियां करते हैं, कोई इबादत का काम करते हैं, कोई अच्छाई का काम करते हैं, तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल करता है तभी उसका अजर सवाब हमको मिलेगा। और कबूल होने के लिए कुछ शर्तें हैं जो जिसका बयान बार बार होता है और वो हम सब जानते हैं। तो ये इंसान ये चाहता है कि उसकी इबादतें कबूल हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अजर सवाब से नवाजे और जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद न हो, उसकी मग़फ़िरत हो जाए। ऐसा ना हो कि उसकी मग़फ़िरत ना हो और वो उसे जहन्नम में जाना पड़े। तो बंदा अगर किसी वजह से किसी के दरमियान अगर कोई बात हो गई है, कोई कड़वाहट है, कोई दूरी और कोई नफरत है, कोई बुराई का कोई मामला है, तो उस चीज़ को उसे चाहिए कि वो उसे दूर कर ले। और यहाँ जो हफ्ते के अंदर 2 दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अमाल पेश होते हैं और जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, इन 2 दिनों के दरमियान यानी सोमवार से जुमेरात के दिन और इसी तरह जुमेरात से सोमवार के दिन के अंदर जो वक्फा है, ये इतना काफी वक्फा है कि किसी का गुस्सा ठंडा हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी फितरत की रियायत की है। इसी तरह ये बात जो है कि इंसान अगर किसी से कतई ताल्लुक कर ले तो उसकी भी लिमिट है कि वो 3 दिन से ज्यादा इसके ताल्लुक को नहीं रख सकता। अगर इससे ज्यादा वो करता है तो हराम काम का मुर्तकिब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत के अंदर इन चीजों का लिहाज रखा है कि इंसानी जो फितरत है कि उसे कभी गुस्सा आएगा, कभी वो तैश में रहेगा, कभी वो किसी से ऐसा मामला होगा कि उसे सलाम करने के भी उसे वो नहीं चाहेगा कि उसे हम सलाम भी करें, इसलिए कि मामला बिगड़ा हुआ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 दिन की लिमिट बांध दी है और 3 दिन ये इतनी मुद्दत है कि इंसान के अंदर जो इंसान के ज़हन के अंदर जो बातें हैं, उसका जो गुस्सा है, जो तैश है, वो सब के सब बैठ जाए। अगर नहीं बैठता है, गुस्सा खत्म नहीं होता और वो मेल मिलाप नहीं करता, बुराई को दूर नहीं करता, उसी तरह से वो बिगाड़ का रास्ता अपनाता है, तो ये एक ऐसी चीज है कि उसके लिए रुकावट है और वो हराम काम का इर्तिकाब करता है। अगर 3 दिन के बाद भी वो ऐसा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारा इंतजाम कर दिया है। और इंसान को किसी से अगर कोई बात होती है, कोई मामला बिगड़ता है, किसी से कोई मामला है अगर, तो इंसान की पहले तो कोशिश खुद होनी चाहिए कि हम उस मामले को रफा दफा कर लें, उसको हम ठीक कर लें, उसकी हम इस्लाह कर लें, इसलिए कि ये जरूरी है। अगर इंसान इस्लाह न करे और वो मामला बिगड़ा का बिगड़ा रहा तो उससे उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक तो ये कि उसके घर का सुकून गारत होगा और उसी तरह उस इबादतों के अंदर वो चीजें मुफिल होंगी, वो इबादत भी ढंग से नहीं कर सकेगा और न अपने घर के अंदर रह सकेगा और न ही कारोबार को ढंग से कर सकेगा। ये काम इंसान को करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को पूरे मन से इंसान को करना है। घर के अंदर में इंसान रहे तो पूरे सुकून से के साथ रहे। उसी तरह कारोबार की जगह में जब आए, वो अपना जो भी वो कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, तो वहां पे उसे सुकून चाहिए, पूरे जहन से वो उस काम को कर सके। लेकिन अगर इंसान के दिल के अंदर किसी तरह की बात है, वो गुस्से में है, ये कि किसी से बुराई पाले हुए है, किसी से अदावत है,
किसी से उसकी मुकदमेबाजी चल रही है, किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ऐसी सूरत में वो न तो इबादत कर सकेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की पूरे मन से, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे इस्तिज़ार क़ल्ब और ज़हन के साथ, और न ही वो अपने कारोबार को कर सकेगा, और न अपने फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने खानदान के साथ वो अच्छा गुजार सकेगा। तो इसलिए ज़रूरी है, और इस्लाम की तालीम भी है कि अगर किसी से कोई मामला है तो उस मामले के अंदर बंदा उसकी इस्लाह कर ले। और इसी तरह इंसान अगर अपने से इस्लाह कर लेता है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान को ये करना है। एक हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हुए थे और आपने लोगों से पूछा, अला उखबिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम व सलाति व सदका, क्या मैं तुम लोगों को एक ऐसी नेकी न बता दूं जिसका मकाम मर्तबा नमाज और रोजा और सदका से भी बढ़ के है? तो साहबे किराम ने कहा, हाँ अल्लाह के रसूल जरूर बताइए। आपने फरमाया, इस्लाहु ज़ातिल बैन व फसादु ज़ातिल बैन हियल हाल, ये आपस के मामलात को ठीक कर लेना, उसकी इस्लाह कर लेना, बिगड़ी को बना लेना, किसी से मामले को सुधार लेना, ये ऐसी चीज है जो बहुत बड़ी नेकी है। इंसान खुद से करे, अगर इंसान खुद से नहीं कर सका तो घर के जो बड़े हैं उनको चाहिए कि अपने माता के दरमियान अगर कोई मामला है, या मोहल्ले के बड़े हैं, खानदान के बड़े हैं, वो भी इस मामले को कर सकते हैं। और हर माशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़ल व करम से जो मामलात को, बिगड़े हुए मामलात को बनाते हैं, लोगों के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं तो उसे दूर करते हैं। लेकिन इस सूरत में इंसान के जहन के अंदर जो शख्स कहीं किसी मामले के अंदर पड़े तो उसके जहन में ये बात होनी चाहिए कि वो हक के दामन को न छोड़े। और एक बहुत बड़ी बात उसके अंदर ये भी होनी चाहिए कि वो देखे कि दिलों के दरमियान जो दूरी पैदा हुई है उस दूरी की वो इस्लाह कर दे। अगर ये चीज जहन में नहीं रही, सिर्फ मामले को अगर तय तमाम करा दिया और दिलों के अंदर नफरतें और दावतें बाकी रह गई तो ये मामला उसके दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, दोनों का इत्मीनान और सुकून गारत रहेगा। तो जो लोग बीच में पड़ते हैं किसी भी मामले में, अपने घर का मामला हो या घर के बाहर का मामला हो, अपने फैमिली का मामला हो, दो भाई का मामला हो, तो उनकी कोशिश यही होनी चाहिए, एक बहुत बड़ी कोशिश और इसका बहुत बड़ा सवाब है कि इंसान दिलों को मिला, मामला को तय करे हक और इंसाफ के साथ और दिलों को मिला दे। ये बेहद जरूरी चीज है। होता यह है आमतौर से कि जो लोग बीच में आते हैं और दो शख्स के माबैन के इख्तिलाफ को दूर करते हैं तो वो लोग किसी न किसी तरह से चाहते हैं कि मामला टल जाए और खत्म हो जाए। उनकी निगाह इस जानिब नहीं होती कि दिलों के अंदर जो नफरतें हैं वो दूर हो जाएं। और होता यह है कि सब कुछ होने के बाद भी दिल करीब नहीं आते, दिल की दूरी वो उसी तरह से बरकरार रहती है। और ये मामला इंसान अगर खुद से कर ले तो बहुत बेहतर है, इसलिए कि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जो अपने निजी मामलात हैं, उसके घर की जो बातें हैं, उसकी वो मख्फी बातें जो वो नहीं चाहेगा कि कोई जाने, अगर दूसरों तक जाती है तो उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और ये कोई नहीं चाहेगा। बंदे मोमिन तो वो दुआ करता है सुबह शाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि उसकी वो बातें जो वो नहीं चाहता कोई जाने उसे वो छुपा के रखे, बरसरे आम न करे, वो चीजें छुपी की छुपी रह जाएं। तो इंसान को अगर खुद से किसी को अपनी चीजें बतानी पड़ी, मजमा के अंदर बतानी पड़ी या 5 लोगों के सामने वो उसे कहना पड़ा तो उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। और ऐसी नौबतें न आए, इंसान खुद से ये कोशिश करे कि उसके मामला निपट जाए। और अगर बीच के लोग आते हैं तो उनकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि निदा का, इख्तिलाफ का जो शिकाफ है उसे कम से कम करें। ये नहीं कि बातों को तूल देकर मामले को और बढ़ा दें। इस तरह की बातें भी होती हैं कि जहां मामला होते हैं तो बीच में आने वाले लोग उस मामले को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा उसे कुरेदते हैं और सारी बातों को फैला देते हैं। और वो जो छेद होता है, जो शिकाफ होता है, जिसकी रफू का काम करना है या पैबंदकारी करनी है, वो इतना बढ़ जाता है कि वो मामला फिर हाथ नहीं आता। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को हमें ध्यान के अंदर रखनी चाहिए। और ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए, अगर कोई फसाद को फसाद बना के रखना चाहता है, उसकी इस्लाह नहीं चाहता है, तो ये एक ऐसी चीज है कि इंसान के दीन को, उसकी इबादतों को, उसकी नेकियों को वो गारत कर देगी। इसी हदीस के अंदर आपने फरमाया है वह फसाद ज़ातिल बैन हियल हाल, ये आपस की जो फसाद होता है, मामलात की जो बिगाड़ होता है, वो ऐसी चीज है, मामलात का बिगाड़ हो या बिगाड़ करना हो। कुछ लोग होते हैं जिनकी ये फितरत और जिनका ये मिजाज होता है कि हर शख्स के दरमियान जहां वो जाते हैं वो फसाद के बीज बोते हैं। दूसरों के दरमियान फसाद का बीज बोना ये एक ऐसी चीज है जो इंसान की नेकी को गारत कर देती है। और अगर किसी दो शख्स के दरमियान अगर फसाद है
उसे अगर बाकी रखा गया, उसे दूर न किया गया, तो ये उसका बाकी रहना ये भी इस बात के लिए काफी है कि इंसान की नेकियां गलत हो जाएं, इंसान के इबादतों के अंदर मन न लगे और इंसान की घर का सुकून भी गलत हो, कारोबार का इत्मीनान भी गलत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये तौफीक दे कि हम अपने मामलात को सुधार सकें, मामलात को खुद से सुधार लें, और हमें तौफीक दे कि हम इस्लाम की खूबियों से अपने आप को आरास्ता करें और उन तमाम आला किरदार की जो बातें दीन ने जो हमको बताई हैं, जो सारा बयान हम सुनते हैं, खुतबों के अंदर सुनते हैं, तकरीरों के अंदर सुनते हैं, उन सारी खूबियों को हमारे अंदर जगह दे, हमारे अखलाक का वो हिस्सा बन जाए, हमारी जिंदगी और हमारे माशरे का हिस्सा बन जाए। वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।